And I told you in my previous lecture that one poem is remaining and its name is Animals. This is the last poem of your syllabus. Last means up to October. Then after October, we are going to continue the next poem. So Animals is the poem. In that, third poem I have taught you which one it is, how to tell wild animals. So in that, very nicely the author has explained about how to identify the wild animals. So here again, the author Walt Whiteman has given information about animals. That this poem is little bit different. That here actually the poet Walt Whiteman has in the poem Animals. It is taken from Song of Myself. In the Leaves of Grass told us that animals are better than human beings. The poet is saying here that animals are better than human beings as they are calm and independent. Animals human beings से काफ़ी अच्छे होते हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होते हैं, काम यानी शांत होते हैं, वो किसी को कभी बिना वजह हैरेस नहीं करते. तो यही पोएम अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. द पोएम नेम ऑफ द पोएम इज एनिमल्स. इट इज रिटन बाय द पोएट वॉल्ट व्हाइटमैन. सो एनिमल्स. The poet tells us that he feels more at home with animals than humans, whom he finds complicated and false. शुरू में ही poet ने ऐसा बोला हुआ है कि he was very uncomfortable with humans and very comfortable with animals because the animals are not harassing him. As human being is talking with us for fulfilling his or her selfish motive. That is why the poet is afraid of the human beings and he is very friendly with animals. He likes the company of animals but not the human beings. So why? Why he likes the company of animals and not the humans? So let's see. It is given in the poem. So I will read the poem first. Here actually this poem is an extract taken from the poem A Song of Myself in the Leaves of Grass. This is actually the big poem and this is just the 2 or 3 paragraphs is taken by the poet. So here it is given about the Walt Whiteman. His birth is in 1819 and he died in 1892. He is a major figure in early American poetry. In an age when all poetry was rhymed and metrical, Whiteman made a break with tradition and wrote a revolutionary new kind of poetry in a free verse. In a free verse means whatever comes in mind, write it down. This is known as free verse. He was a non-conformist in all respects, including his social life. Means what? At that time, means during that 17th or 18th century, it was a tradition to write the rhyming poems. Means they have having the same rhyming. You know that rhyming scheme is there. Okay, but that Walt Whiteman has started the new tradition. He has written the poem. These are revolutionary kinds of poem and in a free verse. This first time he started the free verse writing. Okay, so let's see what is given in this poem. यहाँ पे दिया हुआ है, एक सेकंड. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Then not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possessions. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way used times ago and negligently drop them? So here, तुमको मैंने क्या बोला है वो समझ में नहीं आया होगा, बट अभी तुमको मैं बताती हूँ. देखो what the poet is saying here about the animals. I told you that he likes the company of animals rather than the human beings. So why? तो यहाँ पे पहले जो वर्स है उसमें दिया है, देखो. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contented. Here placid means calm and self-contented means satisfied. Okay, contented. तुमको पता होगा ये वर्ड समाधानी होते हैं. तो यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि आई डिसाइडेड टू टर्न माई राउंड टूवर्ड्स एनिमल, टू टर्न माई लाइफ टूवर्ड्स एनिमल्स. कि मैं मेरी लाइफ किस में जीने वाला हूँ अभी? एनिमल्स के साथ. क्योंकि मुझे ह्यूमंस पसंद नहीं है, मुझे ह्यूमंस से डर लगता है अभी. ऐसे पोएट यहाँ पे बोल रहा है. क्यों बोल रहा है? क्योंकि तुमको पता है कि ह्यूमंस जो होते हैं
वो हमारे साथ कभी कभी अच्छी बातें करते हैं, इवन हमारे फ्रेंड्स भी, क्योंकि उनको कुछ सेल्फिश मोटिव होते हैं। अगर हम मना कर देते हैं तो वो लोग हमसे बात करना बंद कर देते हैं, हमारी बदनामी करते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो ये हुए सेल्फिश मोटिव। एनिमल्स का वैसा नहीं होता है, दे आर प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंटेड। इसीलिए पोएट को, व्हाइट मैन को एनिमल्स के साथ रहना बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे उसने बोला है, बिकॉज दे आर बेटर देन ह्यूमन बीइंग एज दे आर काम एंड इंडिपेंडेंट एंड सेटिस्फाइड। फिर आगे क्या बोल रहा है देखो, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। राइटर यहाँ पे बोल रहा है कि द पोएट्स फील्स दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव लॉस्ट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ एंड दे हैव बिकम मैकेनिकल। यहाँ पे नैरेटर बोल रहा है कि पोएट नॉट नैरेटर, कि मैं लंबे लंबे समय तक पूरे के पूरे दिन एनिमल्स के साथ रहना मुझे अच्छा लगता है। वाई? बिकॉज एनिमल्स कैन अंडरस्टैंड, animals can we can say that enjoy the true value of the nature, the true form of the nature। वैसे ह्यूमंस का नहीं है, ह्यूमंस आर बिकम मैकेनिकल, ह्यूमंस बहुत मैकेनिकल हो गए हैं, वो सिर्फ काम से काम रखते हैं, काम खत्म रिश्ता खत्म, मीन्स द रिलेशंस आर सेकेंडरी। एनिमल्स का वैसा नहीं होता है, ऑलवेज एनिमल्स गिविंग प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू द रिलेशंस को हमेशा प्राइमरी इंपॉर्टेंस देते हैं। एनिमल्स नेचर का मजा भी लेते हैं, उनको लाइफ कैसे जीते उसका ट्रू मीनिंग पता है, ह्यूमंस को पता नहीं है, बिकॉज द ह्यूमंस आर ऑलवेज बिजी इन फुलफिलिंग देयर सेल्फिश मोटिव्स। मेरे पास ये पैसे नहीं है, मुझे इतना काम करना पड़ेगा, इतनी सैलरी आएगी तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, बस कॉम्पिटिशन। मैंने तुमको बोला था, कभी तुमको बोला है कि नहीं पता नहीं, 12th स्टैंडर्ड में चार्ली चैपलिन का एक चैप्टर है, उसमें उसने लिखा हुआ है कि द मैन इज थिंकिंग मोर एंड फीलिंग लेस। मीन्स हम लोग सोचते बहुत है, फील बहुत कम करते हैं। हम तुम लोगों ने देखा होगा, कभी हम लोग ये नहीं सोचते कि मेरे पास इतना है, मैं कितना मस्त हूँ। नो, हम लोग क्या सोचते हैं, अरे उसके पास तो बड़ी कार है, पापा हमारे पास तो छोटी गाड़ी है, उसका ड्रेस कितना मस्त है, मेरा ड्रेस क्यों ऐसा है, उसके बुक्स देखो पापा कितने बड़े बड़े मस्त है, मेरे बुक्स देखो कवर भी नहीं है। तो ये हमेशा कॉम्पिटिशन, बचपन से हम लोग यही देखते हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमको यही सिखाते हैं, और हमारी लाइफ पूरी चली जाती है, तब हमें ट्रू मीनिंग पता चलता है, बट तब क्या काम है, बराबर के नहीं। इसीलिए अभी मीनिंग समझो, फील मोर थिंक लेस, फील मस्त करो, ज़्यादा फील करो तो तुमको खुशी मिलेगी, नेचर का एंजॉयमेंट तुम लोग ले पाओगे। और ज़्यादा सोचोगे टेंशन में आ जाओगे, हाई बीपी बीमारी होगी, डिप्रेशन में आ जाओगे। तो ये सारी बातें हमारे साथ होती रहती है। वाई? बिकॉज वी आर फीलिंग लेस एंड थिंकिंग मोर। तो यहाँ पे नैरेटर वही बोल रहा है, आगे वो क्या बोल रहा है देखो, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन एंड they do not lie awake in the dark and weep for their sins। यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि they have become, humans have become mechanical, animals still enjoy the natural life in the lap of nature। The poet therefore feels that he would prefer to live in animals। He looks at them for a long time and finds that they do not complain and cry about their condition, they do not keep awake in the night and weep for their sins, and they do not discuss about God in manner that makes others sick, and none of them animals are dissatisfied or crazy and greedy about doing things। यहाँ पे नैरेटर ने यहाँ पे बोला है, देखो मैं आगे का पैराग्राफ में पढ़ती हूँ तो मैं एक साथ बता देती हूँ। They do not lie awake in the dark, weep for their sins, they do not make me sick, discussing their duty to God, not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things। इसका मीनिंग ये देखो, जैसे नैरेटर पोएट ने बोला कि एनिमल्स आर truly taking the enjoyment of the nature, they are living their life in the lap of nature, they are enjoying each and every moment of the nature। okay, वो और ह्यूमंस क्या होते हैं, ऑलवेज कंप्लेनिंग। एनिमल्स कभी कंप्लेंट नहीं करते, एनिमल्स कभी ऐसा बोलते हैं कि मुझे 4 पैर क्यों दिए, उसका कलर ब्राउन है, मेरा क्यों ब्लैक है, ऐसा कोई नहीं बोलते, उनको कोई कंप्लेंट है ही नहीं। दे आर नेवर कंप्लेन टू गॉड, दे आर ऑलवेज वेलकमिंग द विशेष ऑफ गॉड। हम लोग बोलते हैं ना, अरे उसके हेयर्स कितने मस्त है, उसकी आंखें कितनी मस्त है। नो, गॉड ने हमको जो दिया है वो ब्यूटीफुल है, दूसरों को क्यों कंपेयर करते हो, शायद वो हमारे पास होता तो हम लोग अच्छे नहीं लगते, है कि नहीं। तो जैसे तुमने मूवी में था गॉड तुसी ग्रेट हो, उसमें दिखाया हुआ है कि गॉड ने हमको जो भी दिया है उसमें ही हमको खुश रहना चाहिए, ना कि ये वो करते करते इतना सारा होता है और एक दिन मर जाते हैं। उनको एक स्टोरी भी तुमने सुनी होगी, जैसे कि एक बहुत ही रिच मैन होता है, उसने पूरी लाइफ पैसे कमाने में ही गुजार दी, बहुत पैसे कमाए। वो रात को जिस दिन वो सो रहा था तो उसने सोचा कि अभी कल से
मैं ट्रू लाइफ एंजॉय करना स्टार्ट करूँगा। और उसी दिन डेथ उसको मिलने आती है रात को। डेथ उसको बोलती है चल मेरे साथ, बोलता है नहीं मैं नहीं आऊँगा। बोलती है नहीं तेरा टाइम हो गया। कि नहीं ऐसे कैसे हो गया, अब तक तो मैंने पैसे ही कमाए और कल से तो मुझे लाइफ जीना स्टार्ट करना है। उसने बोला, डेथ उसको बोलती है कि जब एक बार मैं किसी के घर पे चली जाती हूँ तो वो इंसान कभी बचता नहीं है, तुझे आना ही पड़ेगा, यानी वो इंसान मर जाता है। डेथ उसको बोलती है कि तुझे पूरी लाइफ पड़ी थी, तुझे हमने एक एक दिन दिया, पर तूने ही पैसा कमाने के पीछे तुरा, उसमें हम लोग क्या करें। तूने ना कभी फैमिली के ओर ध्यान दिया, ना अपने बच्चों की ओर ध्यान दिया, और कल से तू दे रहा है तब तो तेरा टाइम एंड हो गया। मीन्स व्हाट, वी हैव टू एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट। फिर दूसरी बात यहाँ पे दिया हुआ है, देखो जो ह्यूमंस होते हैं वो हमेशा कंप्लेंट करते हैं गॉड के पास, है कि नहीं। ये मन्नत मानते हैं, वो मन्नत मानते हैं, बराबर कि नहीं। गॉड टू से ग्रेट वो में बहुत बढ़िया दिखाया हुआ है, तुम लोगों ने अगर देखा हो तो OMG में भी दिखाया हुआ है। क्या ज़रूरत है, बराबर कि नहीं। गॉड के पास मंदिर में जाओ, फ्रीली जाओ, थैंक यू बोलने के लिए भगवान के पास जाओ कि अरे भगवान मुझे पास करवा दे, तुम ये चढ़ाओ, गलत। ऐसे भगवान को लालच छोड़ ही देते। तो यहाँ पे वही बोला हुआ है कि ह्यूमन जो है वो हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं अपनी जो भी वो सीन्स है ना पाप, वो हमेशा कुछ ना कुछ पाप करते हैं, इसलिए उनको रात को नींद नहीं आती। एनिमल्स का वैसा नहीं होता है, फ्रीली शाम हो जाती है मस्त सो जाओ, सुबह होती है 5 बजे एनिमल्स उठ जाते हैं 4 बजे, हमारी सुबह कब होती है 9 बजे, गलत है वो, बराबर कि नहीं। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है कि अगर हम लोग ट्रू लाइफ जीना चाहते हैं तो हमें गॉड ने हमको जो भी दिया है उसमें कंटेंटेड फील होना चाहिए। बहुत अच्छी पोएम है सुनो। फिर यहाँ पे दिया हुआ है देखो कि रात में वो कभी जागते नहीं एनिमल्स, ना कभी वो रोते रहते अरे मैंने ये क्या कर दिया, अरे मैंने मेरे छोटे से के लिए मेरे भाई को मार दिया, वो कभी ऐसा सोचते नहीं। एनिमल्स को ऐसा होता ही नहीं, ह्यूमंस हमेशा सोचते हैं, इसलिए उनको रात को नींद नहीं आती, उनको डर लगता है, डर फियर। एनिमल्स को होती है नहीं, हमको फियर है। क्यों? क्योंकि हम लोग मरने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि हम लोगों को ऐसे होता है अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मीन्स व्हाट कि एनिमल्स जो है वो ह्यूमन के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छी लाइफ जो है वो जी रही है। उल्टा ह्यूमंस को उनसे कुछ सीखना चाहिए कि भाई हमें भी एनिमल्स की तरह रहना है, फ्री। एनिमल्स को कभी चिंता होती है उनको ग्रास कब मिलेगी, कहीं से भी मिल जाती है। मीन्स गॉड ने हमारे लिए ईच एंड एवरी टाइम ही हैड मेड द अरेंजमेंट फॉर अस, की हुई थी और की हुई रहेगी। हमको सिर्फ उसको आगे बढ़ाना है, ना कि उससे खींचना है, करेक्ट ना। यस। फिर आगे वो क्या बोल रहे हैं देखो, उसके आगे के लाइन में दिया हुआ है, नॉट वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज हैंड दैट लिव्ड thousands of years ago, not one is respectable or unhappy over the whole earth, so they show their relations to me and I accept them। नैरेटर ने यहाँ पे रिवील किया है कि वो एनिमल्स के साथ क्यों रहना चाहता है। तो वो क्या बोल रहा है देखो, यहाँ पे उसने बोला हुआ है कि they do not keep awake in the night and keep for their sins, they do not discuss about God in the manner that makes others sin। जैसे हमारा तो अल्लाह है, हमारा तो राम है, हम तो हिंदू है, ये तो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, भगवान तो एक ही है, भगवान किसी ने भी नहीं देखा। अरे इवन हमको ये नहीं पता, मैं तुमको बोलती हूँ, हम लोग बोलते हैं ना कि अर्थ और हेवन ऊपर है, तुम लोग अर्थ के कौन से कोने में हो ये तुमको ही नहीं पता। तुम लोग ऊपर हो, शायद हेवन तुम्हारे नीचे हो, या तुम लोग नीचे हो या अर्थ तुम्हारे मीन्स हेवन तुम्हारे सामने हो, यानी तुम लोग कौन सी दिशा में हो यही हमको नहीं पता। तो हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते कि गॉड ऐसा है और हमारा है और हम लोग हिंदू है? नेवर। 5 मूवीज में भी दिखाया हुआ है, अमिताभ बच्चन ने रोल किया था, वो लोग जो है वो पूरा वाइट ड्रॉ मीन्स पेंट करता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने ऐसे कुछ पार्ट बनाए ही नहीं थे, वो तो कुछ सेल्फिश मोटिव्स फुलफिल करने के लिए ह्यूमंस नहीं बनाए। उसी की वजह से आज इतने सारे रिलीजन्स है। रिलीजन्स तो चलो, कास्ट बनी, कास्ट से सब कास्ट बनी, कितनी मगजमारी। तो ये सारा हमने ही बनाया हुआ है और आज हम लोग ही दुखी हैं, बराबर कि नहीं। तो यहाँ पे पोएट ऐसे बोल रहा है कि एटलीस्ट एनिमल्स जो है वो क्रेजी तो नहीं है, वो भगवान को ऐसे तो नहीं कर रहे कि हमारा भगवान तो गोरा है, हमारा भगवान तो जेंट्स ही है, लेडीज थोड़ी है। वो ऐसा नहीं बोलते क्योंकि वो हमेशा भगवान जो है उसको मानते हैं। नन ऑफ द एनिमल्स आर डिससेटिस्फाइड, क्रेजी, ग्रीडी अबाउट रोलिंग थिंग्स। कोई भी एनिमल ना वो क्रेजी है, ना वो डिससेटिस्फाइड है, ना वो ग्रीडी है, कुछ भी नहीं। एंजॉय, द एनिमल्स आर जस्ट एंजॉइंग द नेचर एंड थैंकिंग द गॉड ऑलवेज। फिर दे डू नॉट नील डाउन एंड शो देयर शो देयर रिस्पेक्ट टू अनदर और टू देयर एंसेस्टर्स लिविंग लॉन्ग एगो। अभी जैसे हम लोग अभी श्राद्ध थे, ओके, श्राद्ध का मीनिंग होता है श्रद्धा। अभी तुम लोग बोले मैम आप ऐसा कैसे बोल रहे हो? फॉरेन कंट्रीज में लोगों को ये श्राद्ध वगैरह पता नहीं, तो उनके जो भी एंसेस्टर्स होते हैं
उनको शांति नहीं मिलती, मिलती है। एनिमल्स के भी एंसेस्टर्स होंगे ना, तो उनको कहाँ श्राद्ध होता है, तो भी उनको मुक्ति मिलती है ना। यस, तो ये जो भी रीति रिवाज है ये हमने हमारे लिए बनाए, बनाए तो अच्छी बात है, बट उसके ऊपर उंगलियां तो मत करो। जैसे मैं ऐसा नहीं बोल रही कि वो गलत है, हमारी श्रद्धा है इसलिए हम लोग श्राद्ध करते हैं, नहीं है श्रद्धा मत करो। हमारे एंसेस्टर्स कुछ हमको ऐसे तलवार लेके वो बैठे हुए नहीं है बेचारे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यही नैरेटर ने बोला हुआ है कि एनिमल्स को ऐसा कुछ होता नहीं है, दे आर नेवर थिंकिंग अबाउट देयर एंसेस्टर्स। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं। दे आर नॉट फोकसिंग ऑन फ्यूचर एंड नॉट थिंकिंग अबाउट द पास्ट, always they are focusing on the present only. So they are not happy or sad but satisfied with resources they are, इसलिए वो दुखी नहीं है। देखो कितना मस्त लाइन है, they are not, वो दुखी भी नहीं है हैप्पी भी नहीं है, क्योंकि वो हमेशा खुश रहते हैं कि ऐसा है आज मैं दुखी हूँ तो मेरा फेस उतरा हुआ है, आज मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे कुछ नहीं। एनिमल जो है वो हमेशा न्यूट्रल मूड में रहते हैं। जो भी रिसोर्सेज उनको मिले, जैसे पानी पीना उनको जो चाहिए, घास वो लोग खाते हैं, ग्रीन ग्रास, वो सब उनको मिल रहा है। वाई दे आर थिंकिंग, उनके पास पैसे कमाने की जल्दी है उनको कि मेरे कितना बैंक बैलेंस है, कोई देखने वाला है बैंक बैलेंस, नो। इसीलिए राइटर पोएट यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे इसीलिए सॉरी इसीलिए मुझे एनिमल्स के साथ रहना पसंद है, ह्यूमंस के साथ मुझे रहना नहीं है। बिकॉज दे आर ऑलवेज ग्रीडी, ऑलवेज सैड, always taking each others we can say that fulfilling their selfish motives, वैसे एनिमल्स में होता है नहीं है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं देखो पोएट, so they show their relations to me and I accept them, they bring me tokens of myself, they evince them plainly in their possession, I wonder where they get those tokens, did I pass that way huge times ago and negligently drop them। so यहाँ पे लास्ट में पोएम ऐसे बोल रहा है, पोएट ऐसे बोल रहा है कि they are not happy, they are not sad, they are enjoying the resources they are having. Human beings are crazy chasing material goods and being greedy. The poet realized that humans have lost their virtues. These virtues however are still present in animals. The poet questions if he negligently dropped the virtues and the animals picked them up. Virtues means यहाँ पे tokens जो बोला हुआ है, tokens means virtues, virtues means moral values, नैतिक मूल्य जिसको तुम लोग बोलते हो, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्च्यूज। तो आज जो है वी आर लिविंग द मटीरियल लाइफ, हम लोग एकदम मटीरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं। उसका बेड कितना ब्यूटीफुल है, मेरा बेडरूम भी ऐसा होना चाहिए पापा। तुम्हारे फादर भी बोलते हैं हाँ मेरे बेटे को एक्टिवा आनी चाहिए, नहीं आती है तो सिखाते हैं, एक्टिवा आती है अभी कार आनी चाहिए, मीन्स ये क्या है, दिस इज मटीरियल लाइफ। इसलिए हम लोग बच्चों का हेल्थ अभी से बिगाड़ रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे दिया है कि एनिमल्स के पास आज भी वो वर्चू है, यहाँ पे लाइन में पढ़ते देखो तो पोएट रियलाइजेस दैट ह्यूमन लॉस्ट देयर वर्चू, ह्यूमंस अपने टोकन्स भूल गए हैं। ह्यूमंस झूठ बोलना ही जानते हैं, चीटिंग करना ही जानते हैं, उनको सच क्या है पता नहीं। आगे वो बोल रहा है कि हावेवर दीज वर्च्यूज आर प्रेजेंट इन एनिमल, एनिमल्स के अंदर आज भी वो वर्च्यूज है। एटलीस्ट किसी को वो चुराते तो नहीं, जैसे मैंने कहीं पे पढ़ा था कि डॉग्स से हमने सारी जो भी उसकी क्वालिटीज़ है वो हमारे अंदर है, सिर्फ हम लोग डॉग से एक क्वालिटी नहीं ले पाए, कौन सी पता है, ऑनेस्टी, जिसको तुम लोग बोलते हैं ईमानदारी। गॉड ये जो डॉग होता है वो कभी किसी को धोखा नहीं देता, हम लोग जिसके घर में खाते हैं उसी के थाली में छेद करते हैं, ये ह्यूमन का नेचर है। तो यहाँ पे वही बोला हुआ है कि एनिमल्स एटलीस्ट वो तो नहीं करते, उनके पास जो वर्च्यूज है उन्होंने उसको संभाल के रखा है, उनके पहले जो एंसेस्टर्स थे वो भी वैसे ही थे, आज उनकी जो जनरेशन चल रही है एनिमल्स की वो भी वैसे है, उसमें कोई भी हम लोगों को डिफरेंस देखने को मिलता नहीं है। द पोएट क्वेश्चंस, इसलिए पोएट हमको क्वेश्चन कर रहा है इफ वी निग्लिजेंटली ड्रॉप्ड द वर्च्यूज एंड एनिमल्स पिक्ड देम अप, अगर उसने वो जैसे हम लोगों ने वर्च्यूज फेंक दिए तो वो किसने लिए, एनिमल्स ने कैच किए। हमने तो सच्चाई मोरल वैल्यूज को छोड़ ही दिया है, हमारा एक ही मोटिव है पैसे कमाओ, रिच बनो, रिच रिचर रिचेस्ट, ये जो डिफरेंस हमने बनाया हुआ है तो हम उसके पीछे ही रहते हैं, और वर्च्यूज हम लोगों के ऑटोमेटिक नीचे गिरते हैं, वो कौन कैच करता है, एनिमल्स, और उसी की वजह से शायद ये अवस्था टिकी हो। एग्जाम्पल ले लो भाई, अभी कोरोना फैला हुआ है, हम लोग मास्क बांध के घूम रहे हैं, एनिमल्स को मास्क पहने हुए देखा नहीं, वो तो ज़मीन का ही खा रहे हैं, उनके पास वायरस क्यों नहीं जाता, हमारे पास वायरस क्यों आता है, बिकॉज ऑफ दिस पर्पज, बिकॉज वी हैव लॉस्ट अवर वर्च्यूज। और गॉड ने शायद ये कोरोना हमको पनिशमेंट देने के लिए भेजा हो कि ह्यूमन बींग्स तुम लोग कुछ सीखो,
काफ़ी लोगों ने कोरोना को पॉजिटिवली भी लिया है, काफ़ी लोगों ने अच्छी अच्छी पोएम्स भी बनाई। बस यही वर्च्यू, गॉड को शायद हमें वर्च्यू से सिखाना था। फैमिली क्या है, घर का खाना क्या होता है, सिंपल कपड़े कैसे पहनते हैं, घर को क्लीन कैसे रखा जाता है, जो हमारे एल्डर्स उनका रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, ये सब हम लोग इन कोरोना में सीखे हैं। पहले पता था नहीं, फैमिली क्या है, साथ में बैठ के खाना क्या चीज़ होती है, ये तो पता ही नहीं। होटल से मंगवा लो, होटल में जाओ, पार्टीज करो, ये वो सब बंद है। फैमिली के साथ हम लोग रह रहे हैं। शायद भगवान को ये वर्चू हमारे में डालना हो, इसलिए उन्होंने कोरोना को भेजा हो। और एनिमल्स को क्यों नहीं हो रहा है, उनके पास ऑलरेडी ये वर्चू है। मानते हो कि नहीं ये बात? यस, माननी पड़ेगी, क्योंकि यही हमको सीखना है। नेचर हमें कुछ बताना चाह रहा है, उसको हमें समझना है। जो इंसान समझा हुआ है वो एकदम खुश है। देखो काफ़ी लोग कोरोना की वजह से दुखी है, मैं कभी दुखी नहीं हूँ। क्यों होने का, हमने कुछ ऐसा काम ही नहीं किया कि हमको कोरोना होगा, बराबर कि नहीं? तो विश्वास रखो गॉड के ऊपर, बस तुमको कुछ होगा नहीं। तो बस यही यहाँ पे जो पोएट है वो बताना चाह रहा है कि हमको हमारे वर्चूज़ को याद रखना है। जिस दिन हम लोग एनिमल्स की तरह जीना सीख जाएंगे, उस दिन ये अर्थ जो है वो ग्रीन, खुश, हैप्पी रहेगी। ना ग्लोबल वार्मिंग आएगा, ना सीजनल चेंज आएगा, कुछ नहीं आएगा, सब अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी पॉइंट थी ना स्टूडेंट, मुझे बहुत अच्छी लगी। इसीलिए पोएट यहाँ पे उसको वो जिद करके बैठा हुआ है कि मुझे किसके साथ रहना है, एनिमल्स के साथ रहना है, क्योंकि वो मुझे खुश रखेंगे हमेशा। एटलीस्ट वो कभी दुख तो नहीं देंगे। तो यहाँ पे बेटा हमारी पोएम कंप्लीट हुई और हमारा जो कोर्स है दिवाली तक का वो भी कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर से 4 ही है। आई होप बहुत ही अच्छा इसमें दिया हुआ है, तो तुमको इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। इसके साथ मैं मेरा लेक्चर एंड करती हूँ। बाय।